So in the previous class we had seen preparation of glucose by two methods. One, the lab method using sucrose or cane sugar with dilute HCl. It gives glucose and fructose as the two component, and out of this two component glucose can be separated by adding ethanol. Glucose remains insoluble whereas fructose get completely soluble. The second method which we took was a large scale preparation where starch or cellulose is used along with dilute sulfuric acid. We get large number of glucose there. So these are the two methods for the preparation of glucose. Now we will see structure of glucose. Very important, structure of glucose. Structure of glucose में क्या देखते हैं आप? Structure of glucose. We know glucose is a polyhydroxyaldehyde. Glucose is polyhydroxyaldehydes. इसी को कंफर्म करना है अब हमें कि yes, it is having more than two hydroxy group and an aldehydic functional group. So polyhydroxyaldehyde, and we call it as aldohexoses. It is aldohexoses, means having 6 carbon atom. So all this will confirm by certain chemical reaction. Please pay attention, and they are quite interesting, and each reaction will help us in understanding the open chain structure of glucose. So जनरल अभी तक क्या पता था? ग्लूकोज इज पॉलीहाइड्रोक्सील्डिहाइड. It is to be called as aldohexoses as it is having aldehyde functional group and its molecular formula is C6H12O6. तो सबसे पहले इसका molecular formula confirm करते हैं. So glucose molecular formula C6H12O6 is confirmed by elemental analysis. जिसमें percentage of each element we can find out, and by putting that we can get the exact molecular formula. अगर याद आ रहा होगा तो हमने एम्पेरिकल फार्मूला निकाले थे और एम्पेरिकल फार्मूला से फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं. दैट इज द मेथड. इसी को हम कहते हैं एलिमेंटल एनालिसिस और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको हम पढ़ाएंगे. सॉलिड स्टेट एक चैप्टर आएगा उसमें. अभी जस्ट मेंशन करके रखिए दैट molecular formula of glucose C6H12O6 is confirmed by elemental analysis and colligative properties. तो ये first point हो गया. Second point, now what will help us that 6 carbon atom है ना, C6H6 है. 6 carbon atoms of glucose is in straight chain. एक सिंगल लाइन में है सब, वो है ना, नो ब्रांचिंग एट ऑल. इज इन स्ट्रेट चेन. दैट कैन बी कंफर्म. So this can be confirmed is in straight chain. This can be confirmed by strong heating
with HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, वैसे ये क्या है, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड। इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HI is a strong reducing agent. It reduces glucose molecule. तो क्या होगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला, जो इसमें 6 स्ट्रेट चेन कार्बन एटम है, दिस कैन बी कंफर्म, एक लाइन छोड़ते हैं, 6 कार्बन एटम ऑफ ग्लूकोज आर इन स्ट्रेट चेन. This can be confirmed by strong heating with HI, which is a very strong reducing agent. तो हम यहाँ ग्लूकोज को लिखते हैं CH3 CHOH 5 times, 4 times CH2OH. This is what the glucose we have, CH3 CHOH 4 times. So we get glucose here. CH2OH, heat strongly with HI, और prolonged heating है ना, उसको देर तक के हीट करना, prolonged heating. When prolonged heating is done, this glucose get reduced to N-hexane. It get reduced to N-hexane, CH3 CH2 4 times CH3. N-hexane यानी normal chain alkane. All the 6 carbon atom are in normal chain. All the 6 carbon atom are in the normal chain. Hence, what we see here, that in a molecule of glucose, the 6 carbon atom are in a straight chain. There is no branching at all. This is confirmed by heating, prolonged heating, strong heating with HI. तो सेकेंड पॉइंट आ गया कि ग्लूकोज के 6 कार्बन एटम जो है वो स्ट्रेट चेन में है। सेकेंड पॉइंट हो गया। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट में क्या मिलता है कि जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ओ हो बेटा हमने गलत बना लिया था, ये करेक्शन होना, CHO होना ना ग्लूकोज में। तो नाउ द थर्ड पॉइंट कम्स which is helping us, third chemical reaction, third point, उसमें क्या पढ़ते हैं कि जो ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप है, it is having aldehyde group, तो उसे अगर हमें पता, तो अल्डिहाइड को हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल possess carbonyl group. Glucose molecule possess carbonyl group. कार्बोनिल ग्रुप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, C डबल बॉन्ड O. Glucose molecule possess carbonyl group. This can be confirmed by reacting with. अब ये कार्बोनिल ग्रुप अगर यहाँ पर है तो उसको कंफर्म करने के लिए, कंफर्म बाय रिएक्टिंग विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन। ये अल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ा था हमने, अमोनिया के डेरिवेटिव्स, 5-6 डेरिवेटिव्स थे
अमोनिया के, उसमें एक पहला डेरिवेटिव हमने देखा था हाइड्रोक्सिल अमाइन। फॉर्मूला देखिए हाइड्रोक्सिल अमाइन का, जैसा उसका नाम है हाइड्रोक्सिल यानी OH आ गया, अमाइन यानी NH2 आ गया। तो रिएक्टिंग ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिल अमाइन प्रोड्यूसिंग, यहाँ क्या मिलता है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब उसे रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है, प्रोड्यूसिंग ऑक्साइन, दिस गिव्स ऑक्साइन, while on reaction with हाइड्रोजन साइनाइड HCl, ये भी एडिशन रिएक्शन है हाइड्रोजन साइनाइड का अल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शनल ग्रुप में, while on reaction with hydrogen cyanide it forms cyanohydrine, it forms cyanohydrine। देखो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, क्यों रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए हम ये पढ़ रहे हैं ना। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज व्हाट वी वांट टू सी, सही है। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंफर्म करना है। ये क्या हो गया, रे 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 रे, ओके। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज के फॉर्मूले को कंसीडर किया हमने, C6H12O6। इसको कंफर्म करते हैं एलिमेंटल एनालिसिस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से। दूसरा लिया हमने कि ग्लूकोज में 6 कार्बन है और वो 6 कार्बन एटम स्ट्रेट चेन में है, तो उसको केमिकली प्रूव करने के लिए हमने प्रोलॉन्ग हीटिंग किया हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो ग्लूकोज काय में कन्वर्ट हो गया N-हेक्सेन में, तो कंफर्म हो गया। अब नेक्स्ट पॉइंट कम्स कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है, ग्लूकोज इज हैविंग अ कार्बोनिल ग्रुप, और वो कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्ट करता है। वो कार्बोनिल ग्रुप जो है वो रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिल अमाइन से और करस्पॉन्डिंग ऑक्साइन बनाता है। तो यहाँ हम रिएक्शन देखते हैं, अल्डिहाइड ये लिखा मैंने CHO, ये अल्डिहाइड ग्रुप, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ CHOH 4 टाइम्स CH2OH। बेटा ये ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, ग्लूकोज करेक्ट है। अब ये ग्लूकोज को रिएक्ट करना है दो रिएजेंट के साथ में। एक रिएजेंट है हाइड्रोक्सिल अमाइन NH2OH। NH2OH को हमने आपसे कहा था कि याद रखना है तो कैसे लिखना पड़ेगा, NH2OH, कौन बोलेगा भाई, अनिरुद्ध बोलेगा, अनिरुद्ध, लावण्य, हु विल से, क्या कैसे रिएक्ट करना है इसको। आर्या दबाड़कर आजकल कुछ बोलती ही नहीं है, आर्या कम ऑन स्पीक आउट। अवंतिका एंड आर्या, बेटा क्या कैसे रिएक्ट करना है, हाउ टू राइट, आप क्या करते हैं इसको H2NOH। उससे क्या होता है कि यहाँ से H2O रिमूव होता है और आपको प्रोडक्ट में क्या मिलता है, इमीन मिलता है ना, C डबल बॉन्ड N। ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को मैं साइड में लगा देता हूँ अभी, तो ये साइड वाले कार्बन में आ गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन दिख रहा है सभी को, आर यू गेटिंग इट। ये बेटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, CHO अल्डिहाइड ग्रुप,
उसके नीचे 4 टाइम्स CHOH CH2OH ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिखा। इसे रिएक्ट कर रहे हैं हम हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ में। हाइड्रोक्सिल अमाइन थोड़ा दूर दूर लिखना होगा क्या, तो यहाँ लिखता हूँ अलग से मैं। ये CH डबल बॉन्ड O CHOH 4 टाइम्स CH2OH। लीजिए जी अच्छे से, अब एकदम क्लियर। पहली रिएक्शन हाइड्रोक्सिल अमाइन H2NOH, नाम लिखते हैं फिर से हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन में क्या होगा, दिस विल गेट रिमूव्ड और आपको मिलेगा HC डबल बॉन्ड NOH। रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल will remain as it is CHOH 4 times and CH2OH। सही है, we call it as ग्लूकोज ग्लूकोजाइम, है ना, ग्लूकोज का ऑक्साइम मिला हमें, है ना, ग्लूकोज ऑक्साइम। और इसी को जब कंबाइन कर दिया तो क्या मिला, ग्लूकोजाइम ग्लूकोजाइम ग्लूकोजाइम। ओके, एक रिएक्शन हो गई है। दिस इज द फर्स्ट रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिलामाइन। सेकेंड रिएक्शन विद हाइड्रोजन साइनाइड HCl, हाइड्रोजन साइनाइड। इसमें क्या होता है, व्हेन इट इज रिएक्टेड विथ हाइड्रोजन साइनाइड, इट्स ए सिंपल एडिशन रिएक्शन। क्या होता है, साइनाइड अल्डिहाइड ग्रुप की रिएक्शन है ये, है ना, बाकी मॉलिक्यूल वैसा ही है। तो साइनाइड विल बी एडेड। अब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, तो नेचुरली साइनाइड कहाँ अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा। साइनाइड विल अटैक ऑन कार्बन एंड हाइड्रोजन विल अटैक ऑन ऑक्सीजन। तो आपको यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा HCCN। देखिए आप, ये साइनाइड ग्रुप ज्वाइन हो गया कार्बन के साथ में, एंड दिस डबल बॉन्ड नाउ बिकम सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सी ग्रुप। बाकी मॉलिक्यूल वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं है, तो डोंट बॉदर अबाउट इट। अब ये बना साइनोहाइड्रीन ऑफ ग्लूकोज, साइनोहाइड्रीन of glucose. This is what we get, cyanohydrine of glucose, cyano। सिंपल रिएक्शन है, आपने पढ़ा है पहले, साइनोहाइड्रीन ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो ये रिएक्शन से क्या कंफर्म हुआ कि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप है, और वो कार्बोनिल ग्रुप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ कंबाइन करता है तो ऑक्साइम बनाता है, साइनाइड के साथ एडिशन रिएक्शन देता है तो साइनोहाइड्रीन ऑफ ग्लूकोज क्रिएट करता है। तो ये साइनोहाइड्रीन ऑफ ग्लूकोज और ये ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज, ये थर्ड रिएक्शन हो गई हमारी। ओके, अब आते हैं फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन क्या बोलती है कि जो कार्बोनिल ग्रुप है, वो कार्बोनिल ग्रुप पक्का अल्डिहाइड है, ग्लूकोज नहीं है। वो जो है कार्बोनिल ग्रुप, दिस कार्बोनिल ग्रुप इज एन अल्डिहाइड। तो रिएक्शन नंबर 4, glucose molecule possess aldehyde functional group, aldehyde group. This can be confirmed by its oxidation। अगर अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं
तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। हमने ऑक्सीडेशन की सीक्वेंस पढ़ी थी कि प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करे तो एल्डिहाइड मिलता, और एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन करे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता। तो जब ग्लूकोज में जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्डिहाइड के फॉर्म में अवेलेबल है ना, ये इस तरह से CHO ग्रुप है ग्लूकोज में। इसको कंफर्म करना है तो सबसे बेस्ट हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन कर देंगे। तो अल्डिहाइड का तो ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाता है, तो विल कैरी आउट इट्स ऑक्सीडेशन बाय यूजिंग एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट which is a mild oxidizing agent। तो ऑक्सीडेशन करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है, दिस ग्लूकोज get converted to an acid and that acid is named as gluconic acid। We call it as gluconic acid। कैसे बन जाएगा, बहुत इजी है। ये CHO क्या हो गया, COOH, and this is CHOH 4 times and here is CH2OH। हो गया ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज का ग्लूकोनिक एसिड में कन्वर्शन क्या कंफर्म करता है कि ग्लूकोज में अल्डिहाइड ग्रुप पक्का प्रेजेंट है। जो कार्बोनिल ग्रुप की हमने पहले बात की थी थर्ड रिएक्शन में, वो कार्बोनिल ग्रुप कुछ और नहीं, वो अल्डिहाइड है। कितना इजी है, ये केमिकली हमने प्रूव कर दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम प्रूव करते हैं कि ग्लूकोज में नंबर 5 जो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है ना, ये स्ट्रक्चर भी आप देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये स्ट्रक्चर में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप दिख रहे हैं आपको। 1 जो लास्ट में है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हाइड्रोक्सी, और उसके ऊपर में 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो इन ऑल देयर आर 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सही है, इसको भी कंफर्म हम कर सकते हैं, करेक्ट है। तो उसको कंफर्म करने के लिए क्या करना होगा, ग्लूकोज का एसिटिलेशन कर देंगे हम। ये H को एसिटिल ग्रुप से रिप्लेस कर देंगे। तो जितने रिप्लेस हो जाएंगे उतने हाइड्रोक्सी ग्रुप रहेंगे। इसीलिए जब ग्लूकोज को एसिटिल क्लोराइड के साथ बेटा हम रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ग्लूकोज बना लेता है पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव। ग्लूकोज प्रोड्यूसेस पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव that confirms that glucose is having 5 hydroxy group in its molecule as it produces penta-acetyl derivative on the reaction with acetyl chloride। क्योंकि एसिटिल डेरिवेटिव कब बनता है, जब H रिप्लेस होता है हाइड्रोक्सी ग्रुप का, H रिप्लेस होता है एसिटिल ग्रुप से। तो यहाँ पर हम वो रिएक्शन कैरी आउट करते हैं। एसिटिक अनहाइड्राइड ले लीजिए या एसिटिल क्लोराइड, वन एंड द सेम। तो बेटा मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, CHO CHOH, ये 4 टाइम्स है सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप, इसके नीचे प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH। तो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसे कंफर्म करना है। सो वी विल रिएक्ट विथ एसिटिल क्लोराइड CH3COCl और एसिटिक अनहाइड्राइड CH3CO twice O, दोनों में से कोई एक। तो क्या मिलता है अपने को प्रोडक्ट, यहाँ पर we get
पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव. ये अल्डिहाइड अब वैसा ही रहेगा, है ना. अल्डिहाइड विल नॉट, वाइल हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो CHO COCH3, ये 4 टाइम्स हो गया. CHO, एक H रिप्लेस हो गया, तो ऐसे 4H है सर. हाँ बेटा, एसिटिल ग्रुप. सर ये एसिटिक एसिटिक अनहाइड्राइड है ना? हाँ, एसिटिक अनहाइड्राइड लीजिए या एसिटिल क्लोराइड, वन एंड द सेम थिंग, दोनों. सर पर फिफ्थ पॉइंट में नाइट्रिक एसिड लिया हमने. काहे में? नहीं नहीं, नाइट्रिक एसिड तो ऑक्सीडेशन करता है. नाइट्रिक एसिड जो है वो सर ये लास्ट पॉइंट है, आप जो सिखा रहे हो लास्ट पॉइंट है, इसके नहीं पहले नहीं का नहीं नहीं, लास्ट पॉइंट नहीं है, ये लास्ट बट वन है. अपने नोट्स में लास्ट पॉइंट है क्या वो? हाँ सर, नोट्स में लास्ट पॉइंट, उसके पहले एक है ऑक्सीडेशन. अब उसके आगे जब पॉइंट नंबर 6 में जा, ग्लूकोज ऑन एसिटिलेशन बाय एसिटिक अनहाइड्राइड or acetyl chloride gives glucose pentacetate which confirms the presence of 5 hydroxyl group. तो यहाँ मैं एसिटिक अनहाइड्राइड ही लिखूं, फिर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा. एसिटिक अनहाइड्राइड, एसिटिक अनहाइड्राइड, तो हमें मिलेगा पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव CH2O. देखिए ये हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाले हैं. कौन से ग्रुप से? एसिटिल ग्रुप से. तो CH3 COCH3 प्लस 5 टाइम्स आपको एसिटिक एसिड मिलेगा यहाँ पर. तो दिस इज व्हाट पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव of glucose. So this is what the product which we get now. So this confirms that there are 5 hydroxy group. This reaction confirms 5 hydroxy group in ग्लूकोज मॉलिक्यूल. सही है. तो सीक्वेंस थोड़ी आगे पीछे हो जाएगी अपने नोट्स में और मेरे भी पढ़ाने में. तो ये पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव आ गया. तो कौन कौन से पॉइंट्स हमने कंफर्म कर लिए? पहला हमने कंफर्म किया कि ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6. Then we have confirmed that glucose molecule is having all the 6 carbon atom in a straight chain. For that we reacted with Hi. We get N-hexane. Then we go with the point that glucose is having a carbonyl group. और उसे कंफर्म करने के लिए हमने 2 रिएक्शन पढ़े. एक हाइड्रोक्सिल अमाइन से ग्लूकोज को रिएक्ट किया तो ऑक्साइन बन गया, और दूसरा ग्लूकोज को रिएक्ट किया हमने हाइड्रोजन साइनाइड से, तो वो साइनोहाइड्रीन बन गया. नेक्स्ट रिएक्शन हमने क्या किया? ग्लूकोज का जो कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्डिहाइड है, उसको कंफर्म करने के लिए ऑक्सीडेशन किया, तो हमें अल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन हो गया, कार्बोक्सिल ग्रुप में हमें ग्लूकोनिक एसिड मिल गया. उसके बाद हमने क्या कंफर्म किया कि ग्लूकोज में 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं. Glucose is consisting of 5 hydroxy group which can be confirmed by acetylation using acetic anhydride. We get penta-acetyl derivative of glucose. Sir, 2 minutes. Okay. So this is the 5th reaction. हम second link पे चले जाते हैं ना. Switch over कर दो. Second link पे. भेजूं? हाँ हाँ. Okay, we'll continue with this Yes, sir. structure
conformation of glucose molecule. With these 5 points we can very well confirm the structure of glucose. Now we'll move to the another last aspect which helps to establish the open chain structure of glucose. So what we see here, that when glucose and gluconic acid अभी हमने देखा था ग्लूकोनिक एसिड, when glucose and gluconic acid they are reacted with dilute nitric acid. When glucose and हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग ऑन है क्या? हाँ, yes please, yes. When glucose and gluconic acid are reacted with dilute nitric acid, it oxidizes the primary alcoholic group. आप यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज को देख रहे हैं यहाँ नीचे। तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में हमें क्या दिखता है कि 1 aldehyde group, 4 secondary alcoholic group and there is also 1 primary alcoholic group. तो ये प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ग्लूकोज में रहता है, that will be confirmed by carrying out its oxidation with dilute nitric acid. Because dilute nitric acid is also a oxidizing agent, तो क्या होगा when this glucose और gluconic acid, यहाँ बेटा ये ग्लूकोज लिया हमने, दिस इज ग्लूकोज, नीचे हम लिखते हैं ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में क्या चेंज है, अल्डिहाइड के जगह कार्बोक्सिल ग्रुप, बाकी पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही है, तो हमें याद करने में भी आसानी हो जाएगी। दिस इज व्हाट ग्लूकोनिक एसिड, both when subjected to oxidation by using dilute nitric acid, तो यहाँ पर primary alcoholic group, this get oxidized to carboxyl group, और ये दोनों एक ही प्रोडक्ट देते हैं and that product is dicarboxylic acid. क्योंकि अब क्या हो जाएगा कि ग्लूकोज जो है वो भी हमें देगा डाइकार्बोक्सिल ग्रुप, यानी अल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखेंगे आप, हमने एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का लिया, डाइल्यूट HNO3 से रिएक्ट किया, दूसरा मॉलिक्यूल ग्लूकोनिक एसिड का लिया, उसे भी डाइल्यूट HNO3 के साथ में हमने जब रिएक्ट किया तो ऑक्सीडेशन हो गया, और दोनों भी हमें क्या प्रोडक्ट देने वाले हैं, ग्लूकैरिक एसिड या फिर ग्लूकैरिक एसिड, या उसे हम कहते हैं सैकरिक एसिड। तो ये है ऑक्सीडेशन, है ना। दिस इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोनिक एसिड गिविंग डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका ये दोनों प्रोडक्ट लेने का पर्पस क्या था बेटा, कि ग्लूकोज अगर लेते हैं हम तो
ऑक्सीडेशन अल्डिहाइड का भी होता, ऑक्सीडेशन प्राइमरी अल्कोहल का भी होता, दोनों का ऑक्सीडेशन होता और हमें डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मिलता। तो इससे समझ में नहीं आता कि एक्चुअली अल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म हो रहा है या प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप कंफर्म हो रहा है। तो उसके लिए साइमल्टेनियसली हमने क्या ले लिया, ग्लूकोनिक एसिड। अब ग्लूकोनिक एसिड में ऑक्सीडेशन के लिए अल्डिहाइड तो नहीं है, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है और प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन इजी होता है। तो यहाँ पर ये ग्लूकोनिक एसिड में अगर ऑक्सीडेशन होगा तो वो कौन से स्पेसिफिक ग्रुप का होगा, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप का, करेक्ट है। तो ये इसीलिए इस रिएक्शन से भी हमें सैकरिक एसिड मिल रहा है और सिर्फ ग्लूकोज लिया तो भी सैकरिक एसिड मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये डाइल्यूट HNO3 के ऑक्सीडेशन में हमें पता लग रहा है कि ग्लूकोज में और ग्लूकोनिक एसिड में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एग्जिस्ट करता है, सही है। तो all these six reaction finally collectively confirms that glucose is a carbohydrate. Glucose is a carbohydrate which is having a molecular formula C6H12O6। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट है कि इट इज हैविंग all six carbon atoms are in straight chain. It also confirms that glucose is having carbonyl group in its molecule। अभी मैं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। It also confirms that the carbonyl group is nothing but an aldehydic group। Then if this is an aldehydic group, it get confirmed, then what, glucose is having 5 hydroxyl group। Glucose is having 5 hydroxyl group। नेक्स्ट क्या दिखेगा यहाँ पर, सिक्स्थ रिएक्शन में, दैट ग्लूकोज ऑल्सो possess one primary alcoholic group, having primary alcoholic group। तो all these are the observation। अब आप मुझे ये समझाएं इसमें कि ये ऑब्जर्वेशन के लिए कौन कौन सी रिएक्शन, क्या क्या प्रोसीजर हमने फॉलो किया, एक क्विक रिवीजन हो जाएगा एंड दिस विल हेल्प अस इन एस्टेब्लिशिंग दैट। हाँ जी, तो ये फर्स्ट पॉइंट कैसे कंफर्म हो रहा है, एलिमेंटल एनालिसिस। बोलते जाना है सभी को, सिर्फ मैं वन वे ट्रैफिक नहीं होगा, एलिमेंटल एनालिसिस। अरे जरा मेंटल तो बनो, केमिस्ट्री के लिए मेंटल बन जाओ जरा, बोलते जाने का है। तो हाँ, आदित्य आ गया, आरती भी है। आरती, पहला पॉइंट कैसे कंफर्म हो रहा है, एलिमेंटल एनालिसिस एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है बेटा, ऑल 6 कार्बन एटम आर इन स्ट्रेट चेन। दिस विल बी कंफर्म बाय रिएक्टिंग विथ HI, यस, HI हाइड्रो आयोडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बोनिल ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल इज कंफर्म बाय रिएक्टिंग विथ 2 रिएजेंट। पहला रिएजेंट कौन सा है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। दूसरा रिएजेंट क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड। अदिति बोलेगी अब, अदिति नेक्स्ट क्या है,
ये अल्डिहाइडिक ग्रुप कैसे कंफर्म होता है? अल्डिहाइडिक ग्रुप कैसे कंफर्म होता है? बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. yes, by oxidation of glucose we get here. क्या प्रोडक्ट मिलता है? कम से कम प्रोडक्ट बोल दीजिए. ऑक्सीडेशन करने से क्या मिलता है हमको? ग्लूकोनिक एसिड. एसिड. We get gluconic acid. हाँ, नेक्स्ट आदित्य या अवंतिका कौन बोला? अनिरुद्ध लाहिरी. आदित्य बोल सकता है नेक्स्ट कैसे आएगा बेटा? ये 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे कंफर्म करते हैं? एसिटिलेशन से. दिस इज एसिटिलेशन. अनिरुद्ध क्या प्रोडक्ट मिलता है एसिटिलेशन में? पेंटा एसिटिल डेरिवेटिव. सर उसका माइक खराब है. अच्छा. अनमोल दानी, अनमोल दामले. चल बेटा नेक्स्ट. ये 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप ये कैसे कंफर्म होता है? 1 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप is again confirmed by oxidation using dilute nitric acid. अबे क्या बोल रहा है अनमोल? हेलो, सो रहा है क्या? नींद में से जाग गया बेटा? पर थोड़ा सा ये इसलिए मेरी आवाज ऐसी आई. आवाज नहीं आई. ओके ओके, कोई इशू नहीं. तो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप को कंफर्म करने के लिए भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लेना करना पड़ता है यूजिंग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. तो ये सब रिएक्शंस क्या कंफर्म करते हैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ओपन चेन स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. और ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे बनता है? HC double bond O. And now I am writing the entire structure, complete structure of glucose. 6 carbon straight chain. First carbon, there is 1 aldehyde group, there is 1 primary alcoholic group, and there are total 5 hydroxy group. Out of 5, 1 hydroxy group तो प्राइमरी में चला गया. नेक्स्ट जो आएंगे वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है. तो ये स्ट्रक्चर बनता है बेटा ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर. ये हम C6H12O6 स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज. सही है. And this open chain structure of glucose is provided by, है ना? This open chain structure of glucose is provided by the scientist named as Emil Fischer projection formula, है ना? Emil Fischer projection formula. तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में? फिशर फॉर्मूला. अब आइसोमर्स है. इसके बाद का पॉइंट आपके नोट्स में है आइसोमेरिज्म. और आइसोमेरिज्म मैंने पहले पढ़ा दिया है, इसीलिए डायरेक्ट मैं फिशर फॉर्मूले में आ रहा हूँ. और फिशर फॉर्मूला कैसे बनता है? इट इज बॉन्ड लाइन नोटेशन, है ना? कि 6 कार्बन एटम वर्टिकली एंड 4 कार्बन एटम बाय हॉरिजॉन्टल लाइन. टॉप पे रहेगा अल्डिहाइड, बॉटम में रहेगा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, और ये 4 पॉइंट्स जो है वो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप के हैं. ये है ओपन चेन स्ट्रक्चर फिशर्स फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज. तो आपको ये सब ड्रॉ करने पड़ेंगे. आपने जब हमारा ये नोट्स अगर बना लिया है तो नोट्स में पेज नंबर 3 आप देखेंगे. यहाँ पर ये पेज नंबर 3 में आपको 3 स्ट्रक्चर बनाने होंगे. एक रहेगा ग्लूकोज का, एक रहेगा ग्लूकोनिक एसिड का, और थर्ड वाला रहेगा
ग्लूकैरिक एसिड का। तो ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर आ गया आपके पास में। अब मैं ग्लूकोनिक एसिड का और सैकरिक एसिड ये तीनों फॉर्मूले हम यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो बेटा ये हो गया है ग्लूकोज, करेक्ट। दिस इज अबाउट ग्लूकोज। नाउ लेट अस मेक फॉर ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक एसिड में अल्डिहाइड के जगह पे कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो फिर से स्ट्रेट चेन, 6 कार्बन एटम, 4 हॉरिजॉन्टल लाइन। टॉप में अल्डिहाइड के जगह क्या जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। बॉटम में प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप एज इट इज, एंड 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप अभी आपने किया था, बस वैसे ही लिख देना है। तो ये 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप सेकेंडरी अल्कोहल के आ गया ग्लूकोनिक एसिड। अब आपको यहाँ लिखना है थर्ड वाला ग्लू सैकरिक एसिड। सैकरिक एसिड और ग्लूकैरिक एसिड भी उसे बोलते हैं, वो नाम भी आप याद रखेंगे। सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड में भी 6 कार्बन स्ट्रेट लाइन, 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। What is the difference in gluconic acid and saccharic acid? क्या डिफरेंस है अनमोल? सर टर्मिनल और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। Yes, it is a dicarboxylic acid, है ना। Both the terminals they have carboxyl group, rest of the molecule as it is. Okay, rest of the molecule remains as it is. तो ये हो गया ओपन चेन स्ट्रक्चर जो हमने केमिकल रिएक्शन पढ़े थे उसकी बेसिस पे ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो ये 6 रिएक्शन पे 6 क्वेश्चंस बनते हैं। हाउ विल यू कंफर्म, एक एक करके यहाँ क्वेश्चन अपन बना सकते हैं। ओके, तो बेटा ये हो गया स्ट्रक्चर। अब एक और पॉइंट पढ़ना है, डीएल कॉन्फ़िगरेशन। अब ये डीएल कॉन्फ़िगरेशन मैं कल पढ़ाता हूँ, अभी मेरा गला दुख रहा, अभी 3 क्लास हो गई तो, है ना। तो प्लीज एक्सक्यूज मी, वी विल स्टॉप हियर इटसेल्फ एंड विल कंटिन्यू टुमारो फर्दर। सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ बेटा।